Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening, listeners, and welcome to another edition of our business program, Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic and business news of today. And today being Sunday, as you know, that it's an interactive program where we involve you as well. You can just pick up your phone and talk to our expert on issues related to mutual funds and related issues. You can call us on 2331 4444, 23717106, and our third line is 23717117. If you're calling from outside Delhi, please prefix the STD code, that's 011 before the numbers. I'm Ranga Bashim, and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद रंगा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, जहां रोज की तरह हम देश और दुनिया से ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। श्रोताओं, आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके प्रश्न प्रोग्राम में सीधे शामिल करेंगे। आप हमें फोन करके म्यूचुअल फंड से जुड़ी कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। प्रश्नों के जवाब देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में आमंत्रित हैं म्यूचुअल फंड विशेषज्ञ धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। और अब शुरुआत में हेडलाइंस, जिन्हें आप तक ला रहे हैं एस रंगाभाष्यम। Thank you, Sonu. The top stories. Foreign investors pump in nearly 6,000 crore rupees into the Indian capital market so far in January. Investors infuse over 6,500 crore rupees in gold ETF in the year 2020. And private companies in Punjab start buying cotton way above the minimum support price. विदेशी निवेशकों ने अब तक जनवरी में भारतीय पूंजी बाजार में लगभग 6,000 करोड़ रुपए की राशि की निवेश। निवेशकों ने 2020 में सोने पर आधारित एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में 6,500 करोड़ रुपए से अधिक राशि डाली। और पंजाब में निजी कंपनियों ने कपास के लिए सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दाम पर कपास की खरीदारी शुरू कर दी है। And now for all the details. Continuing its bullish trend towards Indian markets, foreign institutional investors pumped in nearly 6,000 crore rupees into the domestic capital markets so far in January. As per depositories data, foreign portfolio investors or FPIs put in a net 4,819 crore rupees into equities and another 1,000 crore rupees into the debt market during the period 1st to the 8th of January, taking the total net investment during the period to 5,819 crore rupees. In December, overseas investors had invested a massive 68,558 crore rupees in the Indian capital markets. Prior to that, FPIs invested 62,951 crore rupees in November and 22,033 crore rupees in October last year. और अब हमारे साथ आज के हमारे पहले श्रोता दिल्ली से श्री आर.एस. दहिया जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल पूछिए। मैम नमस्कार। जी नमस्कार। आप प्लीज अपने रेडियो सेट की वॉल्यूम हल्की कर दीजिए, उसकी एको आती है। ओके, अभी कर रहे हैं। मैम, माय क्वेश्चन टू धीरेन्द्र जी इज जी that if I sell mutual fund investment worth of 10 lakh rupees, then and again reinvest the 10 lakh rupees in another mutual fund scheme, will there be any long-term capital gain like in case of a property? If I sell a property and buy another property of same value or more, then there is no long-term capital gain. And how to get the benefit of fathering effect and the rates of 31st July 2018 in case there is a long-term capital gain?
Okay, first and foremost, there is no such thing as the kind of real estate that happens or you sell a house and invest the gains in a stipulated period and you are not liable for any capital gains tax. There is no such thing like that. All your gains, depending on whether it is short-term or long-term or depending on whether it is coming from an income, from a debt fund, whether it is 3-year-old or less than tax, it will be treated accordingly. And to us, everybody is entitled to get the grandfathering of, all your old investments, the gains on that till 31st of January 2018, you don't have to pay the taxes because that was the prevailing law there. And all the gains subsequently, all the gains from 1st of February 2018 will be liable to the new capital gains tax. For the first time, we are witnessing some capital gains. So yes, if you sell any investment, then you have to worry about it, and all your gains till 31st of January 2018 is exempt. Yeah. Let's go across to Amritsar in Punjab, where we have Manohar joining us on the show. Good evening and welcome to Market Mantra. थैंक यू. नमस्कार मार्केट मंत्र टीम को और धीरेन्द्र जी को. मेरा एक सवाल है. हमने करीब 1000 पॉइंट सेंसेक्स बढ़ने से पहले ही अभी 35 से 40% का अपना कॉर्पस जो है उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लिया था, नेवर बिफोर जो अर्निंग हुई है हमारी. तो अब उसके बावजूद ये मार्केट लगातार अभी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है. तो दोबारा एंटर करने का मौका कब तक वेट करना चाहिए, प्लीज उसके बारे में गाइड करिए. मुझे उस समय बेचने के समय भी पता नहीं था कि ये उचित समय है और ये दोबारा लगाने का उचित समय है कि नहीं. यहाँ से बाजार सीधा ऊपर जाएगा, तुरंत लगा दें या आपको करेक्शन का मौका मिलेगा. और खासकर जब आप पैसा अपना एक केवल मार्केट के आधार पे आप निकालते हैं तो ये बड़ी समस्या होती है. दोबारा 35-40% बढ़े हुए इंडेक्स पे दोबारा पैसा लगाना बड़ा मुश्किल है. तो एक तो मेरे लिए गेस करना बड़ा मुश्किल है. हो सकता है कि हम सब हैरान रह जाएं और ये बाजार चलता जाए. हो सकता है लगाने की तुरंत बाद बाजार में फिर गिरावट आए और फिर आपको अफसोस हो. मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये मैं जरूर बता सकता हूँ कि भविष्य के लिए इसे जरूर सबक लीजिए कि जब तक कोई आपके पास वाजिब रीजन नहीं हो आपके कारणों पे आपका जोर चलता है, बाजार पे आपका जोर नहीं चलता. और बाजार कई बार बहुत लंबे समय तक ये अनरीजनेबल हो सकता है. और अभी मुझे लगता है कि ऐसा है. विदेशी निवेशकों का जिस स्केल का इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसमें हम इसके बारे में चिंतित रहेंगे बाजार के बारे में, इसके बावजूद ये बढ़ता रहेगा. तो इसके बारे में और एक छोटे निवेशक के लिए ये सब गेस करना बड़ा मुश्किल है. चलते हैं अगले कॉलर की ओर जो है दिल्ली से. अब्दुल, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए. हेलो. हाँ जी, सवाल पूछिए. जी गुड इवनिंग. गुड इवनिंग जी, मैं हफीज बोल रहा हूँ, अब्दुल हफीज. जी मेरा सवाल ये है कि किसी का इनकम सोर्स म्यूचुअल फंड से सिर्फ है, अनएम्प्लॉयड है, और जैसे नॉलेज मुझे है कि अप टू 5 लाख अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होता है तो वो एग्जेम्प्ट होता है. तो सवाल ये है कि क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो 1 लाख तक एग्जेम्प्टेड होता है वो दोनों मिलाकर है, या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अप टू 5 लाख एज ए इनकम माना जाएगा और 1 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स सेपरेट होगा? जी हाँ, आपकी जो जानकारी वो एक्चुअली 5 लाख कैपिटल गेन्स आपका एग्जाम्प्ट नहीं है. उसको दूसरे नजरिए से देखिए कि आपको इनकम 1 साल से कम के निवेश में जो आपको इनकम मिलता है उसका इनकम टैक्स का आपके मार्जिनल रेट पे टैक्स किया जाता है. और चूंकि हमारे यहाँ 5 लाख रुपए तक की आमदनी टैक्स एग्जाम्प्ट है, स्टैंडर्ड डिडक्शन ले करके, इस वजह से वो है. ऐसा नहीं है कि डेट फंड से मिलने वाला रिटर्न टैक्स एग्जाम्प्ट है. चूंकि आपकी कोई और आमदनी नहीं है, इस वजह से वो है. तो और उसी लिहाज से मुझे लगता है कि 1 लाख रुपए तक का इक्विटी से हुआ गेन, इक्विटी फंड से हुआ गेन, उस पर आपको टैक्स नहीं, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना है. तो ये दोनों अलग अलग होंगे. राइट. And joining us next is Nand from Delhi. Good evening and welcome to the program. Yeah, I want to ask Dhiren ji. Good evening, Mr. Dhiren. Good evening. Yeah. My question to you is, what is the latest on Franklin Templeton court case? Last week you said that they have given the information to court. So what is the latest on that? When can we expect our money, either in full or in part? Can you just speak on this? Thank you. I really don't know. Franklin Templeton people wrote a letter day before, and the latest is that in the third week the unit holders meeting as well as the
voting is over, and we don't know the results. SEBI appointed a supervisor, and he was overtaking, he was keeping an oversight on all the things happening. So now the court is going to reconvene, and it will happen in the last week of January. This is how our legal process is. It takes a little longer. The Supreme Court hearing is due sometime in the third or fourth week of January, and then we will have some roadmap. अगले कॉलर है केशव मुंबई से। केशव नमस्कार, सवाल पूछिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। सुकन्या समृद्धि के अलावा ऐसा कोई म्यूचुअल फंड में है कि छोटी बच्ची के नाम पर हम म्यूचुअल फंड शुरू कर सके सर 15-20 साल के लिए? थैंक यू। यह सुकन्या समृद्धि योजना एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड है जो कि आप अपनी बेटी के नाम से कर सकते हैं और उससे आपको निश्चित आमदनी मिलती है। उसके अलावा आप किसी भी फंड को अगर चुनते हैं और अपनी बेटी के नाम से अगर आप लेते हैं और जब तक वो मेजर नहीं होती तब तक उसको पैसा नहीं मिलेगा, इतनी लंबी अवधि के लिए आप निवेश करते हैं तो कोई भी निवेश उसके लिए एलिजिबल है। और इक्विटी से मिलने वाला लंबे समय का रिटर्न ज्यादा काफी कन्वीनियंटली टैक्स होता है। और खासकर जब अगर आप अपनी बच्ची के नाम से करते हैं तो वो अगर फर्स्ट होल्डर है और वो बड़ी होकर के अगर ये उसका इन्वेस्टमेंट हो जाता है तो चूंकि ये एक्यूमुलेशन आपके जरिए हुआ है और उस समय उसकी कोई आमदनी नहीं होगी तो शायद इसका ट्रीटमेंट भी अलग तरीके से होगा। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट आपके लिए क्वालिफाइड है अपनी बेटी के इन्वेस्ट करके। And joining us next is Mr. Parashar from Gujarat. Good evening and welcome to Market Mantra. नमस्कार सर, मैं मार्केट मंत्रा टीम को और धीरज जी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं पहली बार बात कर रहा हूँ, सुनता प्रोग्राम को हमेशा हूँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा धीरज जी को टीम को मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरी एज है 61 ईयर्स, रिटायर्ड हूँ मैं, और क्या मैं ये जो मेरी कुछ इक्विटीज से कुछ पैसा निकाल करके जो सिग्नेचर स्कीम है एक आईसीआईसी की म्यूचुअल फंड सिग्नेचर, वो स्कीम कैसी है, क्या उसमें मुझे लगाना चाहिए क्या? क्योंकि उसमें वो कहते हैं कि तो रिटर्न जो नॉट टैक्सेबल होगा और 5 साल या 10 साल तक के लिए मैं लॉन्ग टर्म के लिए रख सकता हूँ पैसे को, एंड आई कैन इन्वेस्ट अप टू 5 लाख रुपीज। तो मैं जानना चाहता था उसमें क्या करना चाहिए। थैंक यू। नहीं, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड का ये स्कीम नहीं है, ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का ये स्कीम है। ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का सिग्नेचर यूनिट जिसमें क्लेम करते हैं कि ये गेट टैक्स फ्री मंथली रिटर्न, पर मुझे इसके बारे में खास जानकारी नहीं है। इसमें इनका क्लेम है कि ये मिलने वाला रिटर्न टैक्स फ्री है, सिस्टमैटिक विड्रॉल संभव है, इंश्योरेंस कवरेज आपको मिलता है, पर मुझे इसके बारे में बारीकी से जानकारी नहीं है कि मैं आपको सलाह दे पाऊँ। कॉल्स का सिलसिला आगे जारी रहेगा, उससे पहले एक खबर पर नजर डाल लेते हैं। कोविड से उत्पन्न आर्थिक मंदी और डॉलर में कमजोरी के बीच निवेशकों ने 2020 में सोने पर आधारित एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में 6,657 करोड़ रुपए निवेश किए। वर्ष 2019 में ये निवेश सिर्फ 16 करोड़ रुपए था। भारतीय म्यूचुअल फंड संगठन के आंकड़ों से पता लगा कि दिसंबर 2020 के अंत तक गोल्ड फंड्स में निवेश की गई राशि पिछले वर्ष की 5,768 करोड़ के मुकाबले दोगुने से भी अधिक उछाल दर्ज करती हुई 14,174 करोड़ रुपए पर जा पहुंची। निवेश विकल्पों में सोना सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले विकल्पों में उभर के आया है और निवेशकों ने 2020 में सोने में निवेश को प्राथमिकता दी। सोने पर आधारित 14 ईटीएफ में निवेशकों ने कुल 6,657 करोड़ रुपए की शुद्ध राशि निवेश की। मार्च और नवंबर को छोड़कर वर्ष 2020 में पूरे साल इन फंड्स में शुद्ध निवेश किया गया। पिछले 2 वर्षों के दौरान संकट के समय सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने में 2013 और 2018 के बीच शुद्ध निकासी हुई थी। And let's continue phone calls. Joining us next is Ramesh from Mumbai. Good evening and welcome to Market Mantra. Good evening, sir. All of you, Dharmendra Saab. I want 2 questions. One, Kotak Pioneer. Can you please tell me how is this fund? And for long term UTI equity, are these 2 funds good for long term, at least 3 to 5 years? I don't know about Kotak Pioneer. I think if there's a possibility that it might be. I can't really. I haven't taken a closer look at that. But UTI equity is proving to be a very impressive fund,
and it might be, worth investing. And it has, done very well in a sustained way over a long period of time. Kotak Pioneer, I just took a look, and it is a relatively new fund. It was launched in October 2019. Since then, it has gone up by 34%. And it's an unusual objective in terms of investing in businesses, deriving all their revenue, or innovative businesses, so to say. So let's see what we did. But if this fund is also proving to be well, I don't know much about this scheme having a limited history. आइए अगले कॉलर की ओर चलते हैं। वीरेंद्र है गुरुग्राम से हमारे साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है, सवाल पूछिए। धन्यवाद जी। तो नमस्कार सर, मुझे 2 सवाल पूछने हैं। एक कि मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। आई बीन इन्वेस्टिंग फॉर द लास्ट 10 to 15 years, बट अभी तक मैंने एक बार भी रिडम्पशन नहीं किया है। तो अब जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, बट मेरा कोई अभी इमीडिएट गोल नहीं मीट हो रहा है, एंड आई एम ए सैलराइड क्लास। तो पहली बात तो मेरी एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये मैंने 2-3 हफ्ते पहले भी ये पॉइंट पूछा था। और दूसरा, अगर मुझे कुछ म्यूचुअल फंड्स अपनी मदर को गिफ्ट करने हो, तो क्या मैं उनको गिफ्ट कर सकता हूँ? क्या उनपे भी ये टैक्स लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? थैंक यू। पहला कि क्या करना चाहिए, आप 10 साल से निवेश कर रहे हैं और आपने कभी बेचा नहीं है, और आपको इसका फायदा पता चल गया होगा कि अगर आपने बेचा नहीं है अपनी जरूरत के हिसाब से आप कर रहे हैं, तो 10 साल में आपने देखा होगा कि कई बार उतार चढ़ाव आया होगा, उसके बावजूद आपको जो फायदा हुआ, और खासकर जो लोग घबराए नहीं है मार्च में, उसके पहले कई बार आप ऐसा मौका आया होगा जिस समय आप काफी बाजार में बने रहना, अपने निवेश को पे बने रहना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो अपनी जरूरत के हिसाब से ही चलना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ ना बेचें। अभी तक आपने कोई एसेट एलोकेशन प्लान नहीं बनाया है, अगर आपको 5-7 साल में इस पैसे की जरूरत होगी तो थोड़ा पैसा फिक्स्ड इनकम में लगाइए। एक डेफिनेट परसेंटेज, 1/3 पैसा, 1/4 पैसा, जो भी आप देखते हैं, जो रकम हुई है, उतना पैसा निकाल के फिक्स्ड इनकम फंड में लगाइए। उससे आपका एक लिमिटेड गेन जो है वो आपका वो बाजार के एक्सट्रीम वोलेटिलिटी से बच पाएगा। बचा हुआ पैसा इक्विटी में रहे, और इस एलोकेशन को बार बार, बाजार तो ऐसा ही रहेगा, कभी बहुत तेजी से बढ़ेगा, कभी तेजी से गिरेगा। इसका फायदा उठाइए इस एलोकेशन को स्थापित करने के बाद, कि जब अगर आपने 35% निर्धारित कर दिया कि इक्विटी में लगेगा, ये 35 अगर 40 हो जाए तो उसको कम इक्विटी बेच करके डेट से इक्विटी में पैसा लगाए। अगर आपका जो 65% इक्विटी में लगा हुआ है वो अगर बढ़ जाए तो उसको बेच करके डेट में लगाए। इससे आप थोड़ा एक डिसिप्लिन तरीके से बाजार के उतार चढ़ाव का फायदा उठा पाएंगे, और आप एक डिफाइंड स्ट्रैटेजी पे होंगे। गिफ्ट करने का एवेन्यू आपके पेरेंट्स के लिए नहीं, लेकिन अगर आप पैसा निकालते हैं, और चूंकि 2018 के पहले का गेम्स अगर पूरी तरह टैक्स शेल्टर्ड है, तो आपको पैसा निकाल करके भी वो उनको गिफ्ट वो पैसा ही दे सकते हैं। और चूंकि आपने सिबलिंग्स के बीच में और पेरेंट्स के बीच में कोई गिफ्ट टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है, तो आप अगर अपनी माँ को पैसा देते हैं, आपकी माँ आपको पैसा देती है, तो इस पे कोई गिफ्ट टैक्स नहीं लगता है। Right. Our next caller is Varun from Delhi. Good evening and welcome to the program. Good evening, sir. Yes, sir. Put your question. हाँ, मुझे सर इन्वेस्टमेंट करते वक्त ना गलती से मोतीलाल ओसवाल का जो नैस्डैक का जगह में मैंने फोकस 25 में इन्वेस्ट कर दिया ऑनलाइन। तो सर अभी तो टैक्स लग जाएगा। अभी अगर मैं स्विच करूँ तो क्या करना चाहिए? अभी उसी को ही स्विच करूँ या कितनी वृद्धि हुई होगी? और ये खास वृद्धि नहीं हुई होगी। मुझे लगता है कि गलती हो गया था। आप किसी मुनाफे पे ही हैं, पैसा निकालिए और अपने निवेश के प्लान पे कायम रहिए, और जो मुनाफा हुआ है उस पर 10% मुनाफे पे टैक्स देना कम खलता है, क्योंकि आप मुनाफा तो हुआ है सबसे कम। कृषि क्षेत्र से खबर ले लेते हैं आप।
पंजाब में गैर सरकारी कंपनियां सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक कीमत पर कपास की खरीद कर रही हैं। कपास की खरीद के लिए अधिकृत सरकारी एजेंसी भारतीय कपास निगम ने 5,665 रुपए से 5,725 रुपए प्रति क्विंटल तक की दर से कपास की खरीद की है, लेकिन निजी कंपनियां 5,900 रुपए प्रति क्विंटल की दर से कपास खरीद रही हैं। इनमें पंजाब के विभिन्न भागों के कपास कारोबारी और कारखाने शामिल हैं। राज्य के कपास किसान अब अपने उत्पाद निजी कंपनियों को बेच रहे हैं। भारतीय कपास निगम के पंजाब के अधिकारियों ने बताया कि अब निजी कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कपास की बढ़ती मांग और ऊंची कीमत के कारण न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दर पर कपास की खरीद कर रही हैं। And just to remind our listeners, our phone numbers are 2331 4444, 2371 7106 and 2371 7117. If you're calling from outside Delhi, please prefix the STD code. That's 011 before the numbers. So this is an interactive program, as you know. You can just pick up the phone and clear all your doubts, queries and questions with our expert Dhirendra Kumar related to mutual funds and other issues. And moving on, the new business premium of life insurance companies reduced 3% to 24,383 crore rupees in December last year against 25,080 crore rupees in the same month of 2019. According to the Insurance Regulatory and Development Authority of India, market leader LIC garnered 14,346 crore rupees, or roughly 68% of the total premium generated during the month. However, the premium amount is 15% less in comparison to 16,862 crore rupees in December 2019. Private sector comprising of 23 players registered a growth of 22% with new premium collection of 10,038 crore rupees in December. The cumulative new business premium from all insurers during the April-December period of the current financial year contracted 1.7% to 1,91,046 crore rupees. और अब शामिल कर लेते हैं हमारे अगले कॉलर हर्ष को, जो दिल्ली से हमें फोन कर रहे हैं। हर्ष, आपका स्वागत है, सवाल पूछें। मैम, मेरे मॉम ने अभी आज से 3 साल पहले एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स प्रॉपर्टी सोल्ड आउट करके रिबेट ली थी। अब एक्चुअली मेरे फादर की बिल्कुल अचानक से मतलब उनको देहांत हो गया, तो वो एक और प्रॉपर्टी मेरे फादर के नाम पे है जो मैं अपनी मॉम के नाम करना चाहता हूँ। तो मैं सर से जानना चाहता हूँ कि क्या मुझे उस वाली प्रॉपर्टी में भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में रिबेट मिल सकती है आगे या नहीं मिल सकती? मेरी मॉम एलिजिबल है या नहीं है वापस एक रिबेट लेने के लिए? नहीं, मुझे इसमें बारीकी से ये टैक्स की जानकारी नहीं है, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट से इसके बारे में संपर्क करें। Right, let's take our next caller. We have Dashrath joining us from Delhi. Good evening and welcome to the program. हेलो सर, मुझे एक क्वेश्चन ये पूछना है कि म्यूचुअल फंड में क्या है, अभी एग्जिट लोड भी लगता है, जो कि साल भर से अगर अंदर निकालते हैं तो आपको एग्जिट लोड देना पड़ता है। तो कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड बताइए प्लीज मुझे कि जो जिनमें एग्जिट लोड ना लगे, यानी कि जिन्हों मैं महीने भर में या 2 महीने 3 महीने के अंदर अंदर इन्वेस्ट करके और निकाल भी सकूं और जो बेस्ट हो। कई सारे फंड है जिसमें कि एग्जिट लोड नहीं लगता है। आप वैल्यू सर्च ऑनलाइन पे जाइए, मल्टी कैप और उसके मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप और जो कैटेगरी में पैसा लगाना है उसको लिस्ट कीजिए, और उसमें एक आखिरी टैब आता है जिसमें कि आप लोड एंड एक्सपेंसेस देख सकते हैं। उस पर आप शॉर्ट करके देख लीजिए कि किस फंड में नहीं है, कौन कौन से फंड में एग्जिट लोड नहीं। कुछ फंड है जिसमें कि एग्जिट लोड, इक्विटी फंड है जिनमें एग्जिट लोड नहीं लगता है। लेते अगले कॉलर गाजियाबाद से गौरव, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए गौरव। गौरव, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी जी, सवाल पूछिए। सर, गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा टीम। मेरा सवाल धीरेन्द्र जी से कि ये क्या वजह है कि सारे म्यूचुअल फंड का AUM कम हो गया है एक्सेप्ट फॉर एक्सिस एंड मीरा एसेट एंड शायद से कुछ इन्वेस्को वगैरह 2-3 है। क्या इन लोगों में ज्यादा पैसा जा रहा है या जनरली ओवरऑल AUM सबके ही कम हो रहे हैं? एंड इज इट बिकॉज ऑफ रिडेम्पशन फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट्स और सम अदर रीजन? सर, थैंक यू। नहीं, अगर आप देखें कि इनका AUM कम हो रहा है ऐसी बात नहीं है। हाँ, जरूर यहाँ पर डिसेलरेशन है।
बहुत सारे निवेशक और खासकर जो बड़े सक्सेसफुल फंड है वहां पे थोड़ी गिरावट देखी गई है, क्योंकि निवेशक जैसे आप अभी प्रश्नों में भी सुन रहे होंगे, बहुत सारे लोग जो जिनका पैसा लगा हुआ है, बाजार इस रफ्तार से बढ़ा है और काफी उम्मीद के बिना, तो बहुत सारे लोग अपना पैसा निकालते हैं और उसी का नतीजा हम देख रहे हैं कि पिछले 5 महीने से हर महीने लगातार थोड़ा म्यूचुअल फंड से पैसा निकल रहा है। पर मेरा अंदाज है कि जो स्केल है पैसा निकलने का वो बहुत ही मामूली सा है, इसकी तुलना में कि जिस तरह से लगातार हर महीने पिछले 3-4 साल से म्यूचुअल फंड में पैसा आ ही रहा था। जो निकलने वाला पैसा है उसकी रकम बहुत कम है और AUM कम नहीं हो रहा है। हर महीने अगर आप देखें कि जिस महीने इक्विटी फंड से पैसा निकला है उसके बावजूद बाजार के बढ़ने से AUM में बढ़ोतरी हुई है, तो पैसा निकलने के बावजूद बहुत सारे म्यूचुअल फंड का AUM बढ़ रहा है। Right. Vipul joins us next from Mumbai. Good evening and welcome to Market Mantra. Yes, Vipul, go ahead, put your question. यस सर, मेरा क्वेश्चन ये है सर, ये न्यू फंड ऑफर क्या होता है और ये न्यू फंड ऑफर में मैं पैसा लगाना चाहिए या फिर फंड को सेटल होने के लिए वेट करना चाहिए? और ये क्वेश्चन ICICI का जो साइकिल फंड लॉन्च हुआ है जिसका लास्ट डेट 12 जनवरी है, उसके पर्सपेक्ट में था कि इसको रिस्की फंड बोल रहे हैं, तो हाउ मच इज रिलायबल दैट फंड शुड बी? जहां तक नए फंड की बात है, अगर कोई भी आपको नया कोई स्टोरी बताया जा रहा है या थीम बताया जा रहा है कि ऐसे ही इन्वेस्ट करेगा, उसको साबित होने में समय लगेगा। तो और आमतौर पर मुझे लगता है कि इक्विटी में कोई ऐसा स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई खास बात नहीं है जिसमें कि आप ऐसे फंड में पैसा लगा रहे हैं कि आपको ये डर हो कि कोई बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है जो आप मिस कर जाएंगे, जो फियर ऑफ मिसिंग आउट, इसके ऐसा मुझे नहीं लगता है। म्यूचुअल फंड में अगर आप कुछ देख करके पैसा लगाते हैं तो वो ले दे करके पास परफॉर्मेंस है, और नए फंड में पास परफॉर्मेंस आप देख ही नहीं सकते, ये तो साबित होना है समय में। तो केवल ये स्ट्रैटेजी और ऑब्जेक्टिव देख करके पैसा लगाना बड़ा मुश्किल है। और बहुत सारे फंड हैं, इक्विटी फंड हैं जिनमें जो अच्छे विकल्प हैं, जिनमें उनका परफॉर्मेंस प्रूव हो चुका है, उन्हें अपना विकल्प समझिए। अगले कॉलर है मुंबई से पंकज। समय थोड़ा कम है पंकज, जल्दी से अपना सवाल पूछिए। हाय, मेरे पास HDFC टॉप 100 फंड म्यूचुअल फंड मैंने 2010 में लिया था। अभी उसका जो NAV है वो 52 वीक हाई के आसपास है और मार्च में मैंने देखा है कि वो डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। तो आपके हिसाब से मार्च तक वेट करना चाहिए होगा कि मैं अभी एग्जिट कर सकता हूँ? एक तो आप निर्धारित करें कि आपको पैसा कब चाहिए, उस हिसाब से। और HDFC टॉप 100 बहुत समय तक अच्छा नहीं कर रहा था और अब अचानक अब अच्छा करना शुरू किया है। और यहाँ पे कैटेगरी और इंडेक्स की तुलना में पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे ज्यादा, पिछले 2-3 महीने से यहाँ पे ज्यादा वृद्धि देखी जा रही है। लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे निवेशक अभी भी निराश होंगे कि 5 साल 10-7 साल में खास रिटर्न नहीं मिला है उसकी तुलना में। मेरी सलाह होगी कि अपनी जरूरत के हिसाब से उसको निर्धारित करें और डिविडेंड की वजह से आपको न तो फंड बेचना चाहिए, क्योंकि डिविडेंड कुछ है ही, डिविडेंड का कुछ मायने नहीं होता है म्यूचुअल फंड में। अब आपको जो भी डिविडेंड मिलेगा उसमें से आपका NAV कम हो जाएगा। तो डिविडेंड को अपने दिमाग में न रखें म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के लिए या निकालने के लिए, क्योंकि इसका कुछ खास मायने नहीं है। अगर किसी फंड का NAV 20 रुपए है और वहां पे आपको 20% उसके फेस वैल्यू पे आपको डिविडेंड मिलेगा, तो 2 रुपए अभी मिल जाएगा और घटा हुआ वैल्यू उसका 18 रुपया होगा जो आप रिडीम करेंगे तो मिलेगा, बात बराबर हुई। तो डिविडेंड मैटर नहीं करता है म्यूचुअल फंड में। और अब डिविडेंड चूंकि टैक्सेबल, टैक्स फ्री नहीं है, वो आपकी आमदनी में जोड़ा जाएगा, तो उस नजरिए से भी अट्रैक्टिव है। कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। धीरेन्द्र, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका और सभी श्रोताओं का भी इतने उत्साह के साथ भाग लेने के लिए बहुत धन्यवाद। And before we close, a quick look at the top stories. Foreign investors pump in nearly 6,000 crore rupees into the Indian capital market so far in January. Investors infused over 6,500 crore rupees in gold ETF in 2020, and private companies in Punjab start buying cotton way above the minimum support price. And with that, we come to the end of this edition of Market Mantra, the program that gives you a complete roundup of all that's happening in the world of business, economics and the stock markets. But for now, from the entire team, thank you so much for joining us. Goodbye and have a pleasant Sunday evening. Market Mantra.
Market Mantra.